آسانی سے جس مقام تک کے پہنچایا، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کی برکت سے حضرت مولانا قمرالزمان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم۔ عالی مرتبت صدر جلسہ، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء اعظام، رانی ڈیہ کی سرزمین پہ تشریف لائے ہوئے گڈار قرب و جوار سے تمام نوجوانان اسلام، ابھی آپ کے سامنے ہندوستان کے معناز شخصیت، مخزن علوم و فنون، منبع علم و حکمت، ادیب با کمال حضرت الحاج مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری مد ظلہ العالی، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء کا خطاب سمع ہوا، اور میرے بعد پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی زیدہ مجدہ کا خطاب ہونا ہے، اور ان کے بعد ایک اور عظیم شخصیت، باکمال شخصیت حضرت مولانا اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ منگیر کا بھی خطاب ہونا ہے۔ درمیان میں چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات بڑی توجہ سے سنیں گے۔ انشاءاللہ چند منٹ میں کچھ پیغام دے کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت مولانا مفتی منیر الدین القاسمی، محتمیم مدرسہ ارشد العلوم چھتربر کوڈرما، کل سے اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت اور جامع نقابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے ترجمان جھارکھنڈ جناب ممتاز عاطف صاحب کا 2 مصرع آپ کے ذہن میں رہے، اور یہ سامنے جو حفاظ قرآن، یہ جو حفاظ ہیں جن کے سر کے اوپر ابھی دستار حفظ باندھی گئی ہے، یہ حفاظ آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے اور میری بات آپ سماعت فرمائیں۔
قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم یہ دستور حیات ہے. قرآن کریم یہ نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ تمہارے یہاں جو کتاب ہے، غیر اگر کوئی پوچھ لے غیر مسلم، جس کتاب کو تم دستور حیات کہتے ہو، جس کتاب کے یاد کر لینے والے کو تم حافظ کہتے ہو، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو کیا بتائیں گے؟ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. اگر اگلا سوال کر لے کہ جو کتاب جس کا نام قرآن ہے، جو دستور حیات ہے، جو کتاب پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے جس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جس کو تم قرآن کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم نہ بتا سکیں، ایک حامل قرآن، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا معنی کیا ہے. قرآن کا معنی ہے جو بہت زیادہ پڑھا جائے. قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھا جائے. علماء اسٹیج پر ہیں. کیا معنی ہے؟ بار بار جس کو پڑھا جائے، بہت زیادہ جس کو پڑھا جائے. میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں. قرآن کریم جو مکاتب کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، ابھی مکاتب کا میں ذکر نہیں کرتا، ابھی میں مدارس کا ذکر نہیں کرتا. جن مدارس میں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، مکاتب اور مدارس سے ہٹ کر کے آئیے دنیا کے اس خطے سے میں آپ کا، دنیا کے اس خطے میں میں آپ کو لے چلوں جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. وہ خطہ، وہ دنیا کا وہ خطہ، وہ آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا، وہاں سے آگے بڑھیے انڈونیشیا، وہاں سے آگے بڑھیے ملیشیا، وہاں سے آگے بڑھیے تھائی لینڈ، وہاں سے آگے بڑھیے ہانگ کانگ، وہاں سے آگے بڑھیے برما، وہاں سے آگے بڑھیے بنگلہ دیش، وہاں سے آگے بڑھیے ہندوستان، یہاں سے آگے بڑھیے پاکستان، یہاں سے آگے بڑھیے افغانستان، اور یہ ہوتے ہوئے آگے بحر اٹلانٹک، جو اس دنیا کا، اس خطے کا جو آخری جگہ ہے جہاں پر جا کر سورج غروب ہوتا ہے، آسٹریلیا، یہ وہ خطہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا منادی فجر کے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے. اللہ اکبر کی اذان سب سے پہلے فجر کی اذان اس خطے میں ہوتی ہے جب ایک منادی، ایک مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو وہاں کے بسنے والے مسلمان وضو کر کے اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. سنت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. سنت میں سب سے پہلے 2 رکعت سنت کے لیے جب نمازی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کریم. مولانا فاروق صاحب، مولانا یاسین صاحب، اکابرین بیٹھے ہوئے ہمارے. سورہ فاتحہ قرآن کریم. سورہ فاتحہ کے بعد پھر وہ سورت ملاتا ہے، وہ بھی قرآن کریم. سنت پڑھنے کے بعد اب فرض نماز کی باری آتی ہے، پھر 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے. فرض نماز میں بھی سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر سورت ملاتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن، سورت قرآن. فجر کی نماز آسٹریلیا میں پڑھنے والا جب پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. اب آسٹریلیا سے
आगे नमाज का वक्त जो है वो इंडोनेशिया, अब फजर की नमाज इंडोनेशिया पहुंची, वहां पर मुअज्जिन आवाज देता है, वहां से आगे फजर की नमाज मलेशिया पहुंची, वहां से फिर आगे फजर की नमाज हॉलैंड थाईलैंड पहुंची, वहां से आगे हांगकांग पहुंची, वहां से आगे बर्मा पहुंची, वहां से आगे बांग्लादेश पहुंची, वहां से आगे हिंदुस्तान पहुंची, वहां से आगे पाकिस्तान पहुंची, वहां से आगे अफगानिस्तान पहुंची, वहां से आगे बहरे अटलांटिक जब पहुंचती है, इधर फजर पहुंचती है, इधर ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त हो जाता है। अब जब इधर जोहर फिर आगे बढ़ता है तो फिर असर, फिर आगे बढ़ा तो मगरिब, फिर आगे बढ़ा तो ईशा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुबह सादिक तुलू हुई उस वक्त से लेकर के और जोहर तक के, और फिर जोहर से मगरिब असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, और फिर सुबह सादिक तक कोई ऐसा लम्हा नहीं बाकी रहा, कोई ऐसा वक्फा नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं जहां अल्लाह के कलाम की तिलावत ना होती, अल्लाह के कलाम की तिलावत न होती हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं। पता ये चला कि इस रुए जमीन पे सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम अल्लाह की किताब। यही तो बात है, वो अल्लाह जो आलिमुल गैब, वो अल्लाह जो आलिमुल गैब है, जिन्हें मालूम था कि इस रुए जमीन पर, इस धरती में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाएगी तो ये कुरान करीम, इसलिए अल्लाह ने इस किताब का नाम कुरान रखा, इसलिए अल्लाह ने इस किताब का नाम कुरान करीम रखा, चूंकि अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह को मालूम है कि इस रुए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाएगी तो वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम। और अल्लाह की तख्लीक, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैल, अल्लाह की तख्लीक, ये दिन रात, लैलो नहार, ये आसमान और जमीन की तख्लीक, ये सब अक्लमंदों के लिए इबरत, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का कलाम जब अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, आमना के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे, दो जहां के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, दो जहां के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, जिससे बेहतर शख्सियत पर इस रुए जमीन पर, इस धरती पे सूरज कभी तुलू नहीं हुआ, जिससे बेहतर शख्सियत इस रुए जमीन पर कोई नहीं, जिनके चेहरे का हुस्न, जिनका जमाल, जिनका कमाल। अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको लिखा है कि एक मौके पर प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में क़याम के दौरान एक मौके पर आका अपने हुजरे से बाहर निकले, टहलते हुए आगे चले गए, देखा कि एक काफिला है और उस काफिले वालों के पास कुछ ऊंट चल रहा है। एक सुर्ख रंग का ऊंट, बड़ा खूबसूरत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले वालों से पूछा, ये बताओ क्या तुम ये ऊंट बेचोगे? पता नहीं वो ऊंट बेचने के नीयत से वो लोग लाए थे या नहीं लाए थे, बेचने का इरादा था या नहीं था, ये तो नहीं मालूम। लेकिन जब आका ने पूछा तो कहा कि हाँ बेचूंगा। क्या कीमत? इतनी कीमत।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ऊँट खरीदने के इरादे से नहीं गए थे, इसलिए पैसे जेब में नहीं, कीमत जेब में नहीं थी। आका ने फरमाया कि ठीक है, ऊँट दे दो, मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ और फिर मैं तुम्हारी कीमत, ऊँट की कीमत मैं तुम्हें भेज दूंगा। आका जब चले गए, नजर से ओझल हो गए, तो आपस में बात होने लगी। एक ने दूसरे से पूछा कि ये बताओ तुम उनको पहचानते हो, उनका नाम क्या है? कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहा तुम जानते हो? कहा कि मैं भी नहीं जानता। कहा अजीब मामला है, अगर किसी को कोई चीज़ नकद बेची जाए तो उसमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उधार कोई चीज़ बेची जाए तो उसमें ज़ाब्ता ये है कि आप जिसको दे रहे हैं या तो उसको आप जानते हो, या फिर ये है कि कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर जामिन हो जो उसकी जमानत ले ले, या फिर ये है कि कोई चीज़ गिरवी रख दे। ना तो कोई जामिन ना जानता है, ना कोई जामिन है, ना कोई चीज गिरवी रखी गई है। आपस में कहने लगे यार अजीब मामला है, हम लोगों ने तो नाम तक नहीं पूछा। तो उसमें से एक ने कहा असल बात यह है, नाम न पूछने की वजह यह हुई कि इज़ा तकल्लमा, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, जब वो बातें कर रहे थे तो उनके चेहरे से फूल झड़ रहा। जब वो बात कर रहे थे तो उनके चेहरे से फूल झड़ रहा था। दूसरे ने कहा कि इज़ा तबस्समा, जब वो मुस्कुरा रहे थे तो उनकी मुस्कुराहट का अक्स जो है वो सामने वाले पहाड़ के ऊपर पड़ रहा था। और तीसरे ने कहा कि उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो उनकी हुस्न को देखता ही रह गया। चौथे ने कहा कि चलो सबको हुस्न के जाल में फंसाकर ऊंट लेकर चले गए, तुम लोग अब हुस्न के जलवे देखते रहो। ये आवाज खेमे के अंदर पहुंच गई। जो उस काफिले का सरदार था, उसकी बीवी खेमे के अंदर से ये आवाज सुनती है और वहीं से वो कहती है पर्दे को हटा करके, खबरदार खबरदार, अरे तुमने क्या कहा? खबरदार, अना ज़ामिनतुन, अगर वो कीमत नहीं भेजेंगे तो मैं जमानत लेती हूं, मैं उनके तरफ से कीमत अदा कर दूंगी। तो लोगों ने कहा कि लगता है तुम जानती है, तुम पहचानती है, तुम जानती है। कहा कि नहीं, मैं भी नहीं जानती, लेकिन जिस वक्त वो तुमसे गुफ्तगू कर रहे थे, तुम लोग उनसे बातें कर रहे थे, तो मैं दरवाजे के ओट से मैं उनके चेहरे को देख रही थी। मैंने उनके चेहरे को देख करके मेरे दिल ने यह फैसला किया, उनका चेहरा इतना हसीन है, वो चेहरा झूठा नहीं हो सकता। अभी बात ही कर रहे थे कि कासिद चला आया। कासिद चला आया कुछ खजूरें लेकर के। ये खजूर है, ये खजूर है, आप लोगों की ज़ियाफत के लिए आका ने भेजा, और ये पैसे है, ये कीमत है ऊँट की, ये कीमत लीजिए और खजूर तनावुल फरमाइए। बैक वक्त बैक आवाज़ काफिला वालों ने कहा खजूरें बाद में दीजिएगा, कीमत बाद में दीजिए, हम सबका दिल भी बिक चुका है, पहले हमें बता दीजिए वो प्यारा रहता कहाँ, पहले बता दीजिए वो रहते कहाँ हैं, वो कौन है? कहा चलो लेकर के चलूं, तुम्हें मिला लाओ। काफिले के लोग वफ्द तारक उसको लिखा है, सबको लेकर के गए मस्जिद नबवी में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है, मजलिस में कुछ देर बैठते हैं और सब के सब आका के गुलाम हो। मेरे दोस्तों, जब कुरान का जिक्र आए तो साहिबे कुरान का तो जिक्र आना ही आना है। मैं ये कहने जा रहा था कि अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, आमिना के लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबी तालिब के भतीजे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर गारे हिरा में आप तशरीफ फरमा है और
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से अव्वल वही, अव्वलीन वही से आप सरफराज होते हैं। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से आगे बढ़ करके आप मोहम्मद रसूलुल्लाह बन जाते हैं। आप पर अव्वलीन वही कुरान की आयत नाज़िल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कुरान की ये आयत नाजिल हुई, आप वही से सरफराज हो गए। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए। उलमा से पूछिए 40 साल की उम्र से लेकर 63 साल तक 23 साल तक तदरीज के साथ कुरान करीम का नुज़ूल होता रहा, कुरान करीम का नुज़ूल होता रहा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान की आयत नाजिल होती, आप कातिबे वही को बुलाते, आप कातिबे वही को बुलाकर फरमाते इस आयत को लिखो। आप फरमाते इस आयत को इस सूरत में रखो, इस आयत को इस आयत के बाद लिखो। कातिबे वही उस तरतीब से लिखता जिस तरतीब से आका फरमाते, और जो याद करने वाले सहाबा थे आका उन्हें इस तरह से पढ़ाते कि सुनो इस आयत को यहाँ याद करो, इस आयत को इस सूरत के बाद याद करो, इस आयत को इस सूरत में रख करके इस आयत के बाद याद करो। इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे पहुँचे मेराज की रात, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श के खजाने से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपको अता फरमाई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 आयत पहले मिल गई, और पूरी सूरत जो है वो मदनी है। सूरह बकरा उलमा से पूछ लीजिए, जब पूरी सूरत का नुज़ूल हुआ तो आका ने फरमाया वो 2 आयत जो पहले सूरह बकरा की वो उसे सूरह बकरा के आखिर में उस 2 आयत को रख करके और उसको याद करो। वो मक्की और पूरी सूरत मदनी। ये आपको मैंने मिसाल समझाने के लिए बताया कि उस जमाने में आका हिफ्ज़ सहाबा को कैसे करवाते थे। इस आयत को यहाँ याद करो, इस आयत को यहाँ याद करो। इधर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल होता है, इधर सहाबी हाफिज़ से जिस मकाम तक के पहुँचाया, मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़्फ़ाज़ किराम की बरकत से हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा की मग़फ़िरत का फैसला फरमाएगा। अल्लाह हज़रत के रूह को तस्कीन अता फरमाए, अल्लाह हज़रत के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह हज़रत को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। आज ये हुफ़्फ़ाज़ किराम जो आपके सामने है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वालिदैन को। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिनका बेटा हाफिज हुआ, वो मैया मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिनका बेटा हाफिज हुआ, वो दादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिसका बेटा हाफिज हुआ, वो दादी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिसका बेटा हाफिज हुआ, वो नाना और नानी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिसका नवासा हाफिज हुआ। मेरे दोस्तों, क्यों इस मजमे से 2 दिन के जलसे में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ और एक वादा लेना चाहता हूँ। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये वादा कीजिए, अगर अल्लाह ने 4 बेटा दिया है, अल्लाह ने 5 बेटा दिया है, तो कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। अरे बनाइएगा, हाथ उठाइए। आप एक बेटे को डॉक्टर बनाइए, आप अफसर बनाइए, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं बनाइए, आप प्रोफेसर बनाना चाहते हैं बनाइए, आप आईएएस बनाना चाहते हैं बनाइए, आप पायलट बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन गरीब की बात याद रखिए, फकीर की बात याद रखिए, आप एक बेटे को हाफिज कुरान भी बना दीजिए। क्यों? कल क़यामत का दिन जब ये दुनिया अपनी आंख बंद कर लेगी और आखिरत की आंख खुलेगी, जब मैदान महशर बर्पा होगा, अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा, वहाँ दौलत वाला भी होगा, वहाँ पर गरीब भी होगा, वहाँ फकीर भी होगा, वहाँ अमीर भी होगा,
होगा, वहाँ बादशाह भी होगा, वहाँ काला भी होगा, वहाँ गोरा भी होगा, वहाँ रानी डी वाला भी होगा, वहाँ गुड्डा वाला भी होगा, वहाँ बांका वाला भी होगा, वहाँ हिंदुस्तान वाला भी होगा, वहाँ पूरी दुनिया के लोगों का इज्तिमा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़े कुरान को बुलाएंगे, एक हाफिज़े कुरान को अल्लाह बुलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़े कुरान से अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तुमने सुबह किया तो कुरान की तिलावत, शाम हुई तो कुरान की तिलावत, फजर पढ़ करके कुरान की तिलावत, ज़ोहर पढ़ करके कुरान की तिलावत, मगरिब पढ़ करके कुरान की तिलावत, तहज्जुद के वक्त उठ करके कुरान की तिलावत। ऐ मेरे बंदे, तू सुबह उठता था तो तेरे सामने कुरान रहता था, तू तहज्जुद में उठता था तेरे सामने कुरान रहता था। ऐ मेरे बंदे, ज़ोहर के बाद तेरे सामने कुरान रहता था, मगरिब के बाद तेरे सामने कुरान रहता था, इशा के बाद तेरे सामने कुरान रहता था। जिस वक्त रानी डी के लोग सोए हुए रहते थे, उस वक्त तू उठ करके मेरे कलाम की तिलावत करता था। ऐ मेरे बंदे, आओ आज तू सिफारिश करो, ऐसे 10 लोगों की सिफारिश, ऐसे 10 जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब है, वाजिब हो चुकी है, जहन्नम का फैसला हो चुका है। ऐसे 10 लोगों के लिए सिफारिश करो। तुम्हारी सिफारिश पर है हाफिज़े कुरान, रख दे कांधे पर हाथ, तू बता दे जिसके कांधे पे हाथ रख दे, तू जिसके लिए सिफारिश कर देगा, तेरी सिफारिश पर उसके लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, क्या हाफिज़े कुरान सिर्फ अपने वालिद के लिए सिफारिश करेगा? क्या सिर्फ अपनी वालदा के लिए करेगा? क्या सिर्फ दादा के लिए करेगा? क्या सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए करेगा? अगर मेरी बात आपके दिल को लग जाए तो यही मेरा आखिरी जुमला है, नहीं, हाफिज़े कुरान जरूर अपने वालिद के लिए सिफारिश करेगा, अपनी वालदा के लिए करेगा, अपने दादा के लिए करेगा, अपनी दादी के लिए करेगा, अपने रिश्तेदारों के लिए करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐ मेरे गुड्डा के नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे हाजियों, ऐ मेरे उलमा, सुनो, हाफिज़े कुरान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हाफिज़े कुरान उनके लिए भी सिफारिश करेगा जिन्होंने उनको पढ़ने के जमाने में, उनको हाफिज बनाने में उनका ताउन किया, जिनके पैसे से मदरसे में रह करके वो पढ़ा, जिन्होंने उसको मोहब्बत की निगाह डाली थी, जिन्होंने मोहब्बत से उनको देखा था, उसके लिए भी हाफिज़े कुरान सिफारिश करेगा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, कौन नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन हमारे लिए जन्नत का फैसला हो जाए? कौन नहीं चाहता कि ये हाफिज़े कुरान मेरे लिए सिफारिश कर दे? अल्लाह अल्लाह, इस मजमे में मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि आज मेरे पास मौका नहीं है कि मैं लंबी तकरीर करूं। आपके गुड्डा में परसों भी मेरा प्रोग्राम है, उसके बाद फिर हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब मद्दजिल्लहुल आली, उनके यहाँ भी प्रोग्राम है, फिर उसके बाद 13-14 तारीख को प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो वहां पर बयान होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं, ये 6 हाफिज़े कुरान है। कौन वो जियाला है, कौन वो बहादुर है जो खड़ा होकर के जिम्मा ले ले? एक हाफिज़े कुरान का खर्च 25,000 रुपए मैं इंशाअल्लाह दे दूंगा। एक हाफिज़े कुरान, बैठ जाइए कारी साहब, 25,000। एक हाफिज़े कुरान का खर्च कितना तय किया मुमताज साहब? 25,000। क्या हैसियत है, सौदा सस्ता है। अरे 25,000 दे दीजिए इखलास से अल्लाह के वास्ते। मेहमान रसूल, मदरसे में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? रसूलुल्लाह का मेहमान। जो मदरसे में आता है वो रसूलुल्लाह का मेहमान, मस्जिद में आता है वो अल्लाह का मेहमान, रसूलुल्लाह का मेहमान। मेहमान रसूल के लिए मैं आवाज लगाया हूँ। ये ठाठे मारता हुआ मजमे से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, कौन वो बहादुर है, कौन वो
جی आला है जो ये कह दे कि इंशाअल्लाह मौलाना साहब एक बच्चे को गोद में लेता हूं, एक बच्चे की किफालत मैं करूंगा इंशाअल्लाह और 25,000 रुपए इंशाअल्लाह दे दूंगा। इतने बड़े मजमे से खड़े होकर के बोलिए, अभी उनके लिए दुआ होगी इंशाअल्लाह। अभी पीरे तरीक़त तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, अभी उनकी जुबान से उनके लिए दुआ होगी। कौन है इतने बड़े मजमे में? 6 हाफिज हैं। एक आदमी कोई इतना बड़ा मजमा में कौन ये सआदत देना चाहता है? पहला शख्स कौन है जिसके बारे में जुबान और दिल से दुआ निकल जाए? 25,000 रुपए एक बच्चे का खर्च, 25,000 रुपए। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा रहमतुल्लाहि अलैहि से मोहब्बत करने वाले, मैं जानता हूँ आप सब उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आप उनकी मोहब्बत में आ जाए। रानी डी का हर फर्द उनसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि रानी डी वालों ने मिल करके इतना खूबसूरत जलसा रचाया। मैं रानी डी के तमाम उलमा, यहाँ के बुजुर्गों और यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आवाज़ देता हूँ, कोई एक आदमी खड़े होकर इंशाअल्लाह 25,000 रुपए देने का इरादा कर लीजिए। दाएं तरफ से इतना बड़ा मजमा है, 25,000 रुपए की क्या हैसियत है हाफिज कुरान के लिए। अल्लाह, आपके पैसे से अगर एक यतीम बच्चा पढ़ जाए, आपके पैसे से एक गरीब बच्चा पढ़ जाए, आपके पैसे से एक बच्चा हाफिज